Hello and a big hi to everyone watching this video. Fine. So here we are again from the Altitude Educational Services presenting you chapter number 13, that is magnetic effects of electric current, and this is the very first part of the video. That means you will be having two more parts of the video, that is part 2 and part 3. Okay, just for the convenience we have divided the video into 3 parts. So just let's have a look at the contents, what we are going to study about in this chapter. So here we are with the contents, that is introduction, magnetic field and field lines, magnetic field due to current carrying straight conductor, right hand thumb rule, magnetic field due to current through a circular loop, magnetic field due to current in a solenoid, then force on a current carrying conductor in a magnetic field, electric motor, electric generator, and finally the domestic electric circuits. So as I have divided the chapter into 3 parts, in the very first part we will be taking up the first 4 topics, that is introduction, magnetic field lines, magnetic field due to straight conductor, and right hand thumb rule. Rest of the videos we will just see in the second and the third part. So to take the introduction part, let's start with the magnet. What is a magnet first of all, as we are studying magnetic effects of electric current. Fine, हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे, बट उसके पहले मैग्नेट्स क्या होते हैं, लेट्स क्लियर दिस पॉइंट. सी, magnet is an object that attracts objects made up of iron, cobalt and nickel. Magnet comes to properties of magnet. Okay, मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो पर्टिकुलरली और आई कैन से मोस्टली आयरन, कोबाल्ट और निकल ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मैग्नेट्स देखे हैं. वी यूज टू प्ले विद द मैग्नेट्स. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, a free suspended magnet always points towards north and the south direction. अगर आप मैग्नेट को ऐसे ही कहीं रख दो, leave it alone, so it will always point towards north and the south pole direction of the globe. Third point, the pole of a magnet which point towards the north direction is called the north pole and of the north seeking, and the pole of the magnet which point towards the south direction is called the south pole or south seeking. मैग्नेट का वो पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करे उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, और मैग्नेट का वो साइड जो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करे उसको हम ऑब्वियसली साउथ पोल बोलते हैं. Like poles of the magnet repel each other, while unlike poles of the magnet attract each other. ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, कभी भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा. Similarly, similar poles, that is north and north, south and south, they never attract each other. Okay, opposite poles attract each other. North pole हमेशा south pole को attract करेगा and vice versa. Now the last point, it is observed that when a compass is brought near a current carrying conductor, the needle of the compass gets deflected because of flow of the electricity. Now what kind of compass we are talking over here? मैं कोई ज्योमेट्रिक कंपास की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. द कंपास वी आर टॉकिंग ओवर हेयर इज मैग्नेटिक कंपास. जो हमने देखा है मोस्टली डायरेक्शंस पॉइंट आउट करने के लिए बताता है, वो हमेशा नॉर्थ पोल में ही अपनी निडल को पॉइंट आउट करता है. दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अगर हम इस मैग्नेटिक कंपास को उसके पास रखेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि जो निडल है उसमें डिफ्लेक्शन है. डिफ्लेक्शन इन द सेंस इट इज़ ट्राइंग टू मूव समवेयर. ओके, थोड़ा बहुत तो अपनी पोजीशन से हिल रहा है, इसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. See, here we have mostly 2 types of magnets used in day to day life. एक हमारे पास फर्स्ट मैग्नेट है जिसमें हम नॉर्थ पोल रेड से मार्क देख सकते हैं और साउथ पोल ब्लू कलर से मार्क. in the next magnet also we have the same thing. North is marked with the red color and south is marked with the blue color. The very first magnet is known as bar magnet. इसको हम बार मैग्नेट बोलते हैं, जो हम जनरली लैबोरेटरीज में किसी एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं. These both are the magnets actually which can be used in laboratory experiments very easily. And the next one is horseshoe magnet. It is in the shape of a horse leg. हॉर्स का जो लेग होता है उसके जो आगे के पार्ट्स होते हैं लेग के प्रोटेक्टिव पार्ट्स, उसकी तरह इसका शेप होता है, इसलिए हम इसको हॉर्स शू मैग्नेट भी बोलते हैं. यूजेस ऑफ मैग्नेट्स. वेयर मैग्नेट्स कैन यूज. अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, हम उसको स्टडी करें तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अप्लाई इट समवेयर.
तो मैग्नेट्स के क्या एप्लीकेशन है, ये कहाँ यूज़ आते हैं? दे आर यूज इन रेफ्रिजरेटर डोर्स। ऑब्वियसली जब आप रेफ्रिजरेटर डोर को हल्का सा पुश करके छोड़ देते हो तो अपने आप जाके वो बंद हो जाता है, स्टिक हो जाता है। सो इट इज़ यूज देयर इन रेडियो एंड स्टीरियो स्पीकर्स, इन ऑडियो वीडियो कैसेट्स ऑल्सो, चिल्ड्रन टॉयज़ में भी यूज़ होता है, ऑन हार्ड डिस्क एंड द फ्लॉपीज ऑफ कंप्यूटर। हमारे सीपीयू में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं सब में मैग्नेट का यूज़ होता है। So here we have a picture depicting examples of magnets in everyday life. See, mostly यहाँ पे हमारे पास टॉयज़ हैं, कार्ड है, एटीएम कार्ड्स हैं, ओके, टॉयज़ हैं, कार है, एक एरोप्लेन है, यहाँ पे एक सीपीयू है, एक डेस्कटॉप है। तो these are the materials or the objects which we use in daily life. Okay, so to summarize, magnet can be used in anything and everything. Properties of a magnet. A freely suspended magnet always points toward the north and the south direction. ये मैंने पॉइंट आपको पहले भी बोला कि जब भी आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है. Pole of a magnet which point towards the north direction is north pole and the pole of the magnet which point towards the south direction is called south pole. ये पॉइंट्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Now we have magnetic field. See, what is a magnetic field? अगर एक कोई मैग्नेट है तो उसके आसपास कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. Let's have a look at the definition. The area around a magnet where a magnetic force is experienced is called magnetic field. मैग्नेट के आसपास का वो पूरा एरिया जहाँ तक हम उस मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. It is a quantity that has both direction and magnitude, that is vector quantity. Okay. What is vector quantity? ऐसी कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. सी, हम मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन देख सकते हैं कि उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो इसलिए हम इस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड लाइंस. द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दिस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मैग्नेट के आसपास का जितना एरिया है, जितनी दूर तक हम मैग्नेट के इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं उतने एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास और एनी अदर मैग्नेट. किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट कितनी दूर तक है उसको हम डिटेक्ट करने के लिए एक मैग्नेट या फिर एक दूसरे मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब हम ग्रामेटिकली भी अगर बात करें कि हम ऑन पेपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे शो करें तो हम उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर सकते हैं कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है या फिर कितनी दूर तक है. सी, द इमेजिनरी लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट आर कॉल्ड फील्ड लाइंस और field line of a magnet. When iron fillings are settled down a bar magnet, they get arranged in a pattern which mimics the magnetic field lines. Field line of a magnet can also be detected using a compass. Magnetic field is a vector quantity that is it has both direction and magnitude. Fine. तो मान लो हमारे पास एक बार मैग्नेट है. अब हमें ये चेक करना है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ तक है और कैसे हैं. इसको हम प्रैक्टिकल से करेंगे. ओके, लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट. हमें एक बार मैग्नेट चाहिए और हम कुछ आयरन फिलिंग्स लेंगे, आयरन डस्ट या फिर आयरन का पाउडर. ओके, हम उसको उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे. ठीक है, स्प्रिंकल करने के बाद हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कुछ दूर तक एक डेफिनेट पैटर्न या फिर सर्कुलर पैटर्न्स में वो भी जो हमारे पास आयरन डस्ट है या फिर आयरन के स्प्रिंकल से छोटे छोटे वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो गए हैं. These are the actually magnetic field lines. I mean, they are representing the field line. They are mimicking. Mimicking means they are trying to represent the field lines. ये actually वो field lines है जो मैग्नेट से निकल के नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं. So here a magnet fillings or magnetic dust can be used. So here we have this diagram. जैसे मैंने आपको कहा सिमिलर पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं. हमारे पास एक बार मैग्नेट है विद नॉर्थ एंड द साउथ पोल और आप इन लाइंस को देख सकते हैं. ये नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होकर साउथ पोल की तरफ जा रही है. और अगर हम इन लाइंस की जगह अगर हम मेटल डस्ट और वेरी पर्टिकुलर आयरन डस्ट या फिर आयरन फिलिंग्स लेते तो उनका पैटर्न भी
सेम होता है जैसे ये फील्ड लाइंस अरेंज्ड हैं। Now what is the direction of magnetic field? Magnetic field line से एक magnets originate होती है. Okay, that is fine. Now what is the direction? See, outside the magnet, the direction of the magnetic field lines is taken from the north pole to the south pole. Magnet के बाहर की अगर हम बात करें तो magnetic field line की direction north pole से south pole होती है. Inside the magnet, it is taken from the south pole to north pole. That is just the opposite. Now what is the strength of the magnetic field? The closeness of the field lines shows the relative strength of the magnetic field. That is, closer the line shows stronger magnetic field and vice versa. अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक मैग्नेट के आसपास वो कितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर या फिर वो कितनी वीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग और वीक दे आर, ये हम पता लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी से. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास में है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, that means the strength of the magnetic field in that magnet is very strong. Okay, but if the lines are situated very far from each other, then we can conclude that the magnetic field lines are not that much strong. Okay, now the properties of magnetic field lines. There are three basic properties of magnetic field lines. It is, they do not intersect each other. Magnetic field lines कभी भी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस या फिर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. दे जस्ट रन पैरेलल. अगर टर्न भी होना है तो पैरेलली ही टर्न होंगी. इट इज़ टेकन बाय कन्वेंशन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट होती हैं. इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व. ओके, so these are the three basic characters of the magnetic field line. Now we have magnetic field lines due to current in a current carrying straight conductor. Okay, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, बाय स्ट्रेट कंडक्टर आई मीन दैट एक हमारे पास एक सर्किट है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें करंट फ्लो हो रहा है. अब जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे होंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है और हमारा चैप्टर भी इसी पे बेस्ड है कि जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है. तो अब हमें ये देखना है कि जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, हाउ दे आर जनरेटेड. ओके, सी, a current carrying straight conductor has magnetic field lines in the form of concentric circles. कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब बहुत पास में सर्कल्स बनी हुई हैं, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और ये टोटली करंट फ्लो के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. लेट्स हैव अ लुक with the help of the diagram that how the magnetic lines look around the straight conductor. So let's have a look at this picture. Let the current carrying conductor be suspended vertically and the electric current is flowing from north to south. हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें करंट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है. अब हमें ये चेक करना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसा होता है. सी, flowing from north to south, in this case the direction of magnetic field will be clockwise. हम easily देख सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है. बट अगर यही करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी डिपिक्टेड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल. जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हम करंट के डायरेक्शन से डिपिक्ट करते हैं, और इसके लिए एक रूल है हमारे पास जिसको हम राइट हैंड थंब रूल या फिर मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस आल्सो. सो व्हाट डज राइट हैंड थंब रूल से? इट सेज दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड, अगर मान लो हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर उसको हमने राइट हैंड में पकड़ के रखा है, कीपिंग द थंब स्ट्रेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब, the direction of the wrapping of the other fingers will show the direction of the magnetic field. मान लो हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज यू हैव अ पेन इन योर राइट हैंड. अब जो आपका थंब का डायरेक्शन है वो आपका करंट का डायरेक्शन है, और जो फिंगर्स आपने रैप कर रखे हैं अपने पेन के चारों तरफ वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है. नाउ व्हाट इज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल?
As per Maxwell's corkscrew rule, if the direction of the forward movement of the screw shows the direction of the current, then the direction of rotation of the screw shows the direction of the magnetic field. Let's have a look at this in the picture form. See, here we have pictorial presentation of both the right hand thumb rule and Maxwell's corkscrew rule. हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वाला पिक्चर है इसके अंदर एक हमारे पास राइट हैंड में, जस्ट टेक नोट ऑफ दिस that the conductor should be in your right hand. Okay, now let me clear at this point only, आपको confusion नहीं हो चाहिए. What do you mean by conductor? Conductor are the materials which allow the flow of the electricity. Okay, तो ऐसा कोई कंडक्टर है, मान लो आपके पास एक आयरन रॉड है. एक आयरन रॉड को आपने अपने राइट हैंड में होल्ड कर रखा है. नाउ यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस एज द पर्सन इन द पिक्चर इज होल्डिंग. आपको अपने थंब को ऊपर की तरफ रखना है, फिंगर्स को रैप करना है. अब आपका ये जो थंब है ये आपका करंट का डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स हैं ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, अगर आप इसको उल्टा करें तो आपका करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज जाएंगी. ओके, नाउ सेकेंडली वी हैव द पिक्चर ऑफ मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. ओके, इन दिस पिक्चर वी कैन सी कि जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो हमारा, अगर हम राइट साइड की तरफ टाइट करें तो हमारा करंट नीचे की तरफ जा रहा है, अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ करें तो हमारा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. सो दीज टू रूल्स आर यूज्ड टू चेक और टू डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक current. So this is all for this very first part of the video. I hope you people have liked it. Just go through all the topics very clearly, and if you have any doubt, do ask me. Just feel free to ask me. And to remind you again, there will be 2 more parts of the video. Don't think that only this much is there in the chapter. We will be having 2 more parts of the video. So to learn the full chapter, you have to go through all the 3 parts. Okay, so this is all for this video. Thank you so much.